आज यहाँ पर जमा होने का मकसद ये है कि मुल्क भर में हालात किस तरह से बीजेपी के खिलाफ अवाम तमाम हिंदू मुस्लिम जमा होकर हर जगह बीजेपी को करारी शिकस्त दे रहे हैं और जो सेकुलर पार्टीज है, सेकुलर जहन रखने वाले हैं, उन लोगों का दिन ब दिन गिराव बढ़ता जा रहा है और झूठे वादे करने वाली जो गवर्नमेंट झूठे वादे करके लोगों के वोट ली और अडानी अंबानी के तिजोरियां भरती रही और उन जैसे उसी उमाश के लोगों को तमाम बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट देकर अवाम को गुर्बत के दलदल में फंसाती गई, कर्जों के दलदल में फंसाती जा रही है। इस गवर्नमेंट के खिलाफ तमाम लोग जमा हो गए हैं और अब कोई मुद्दा नहीं रहा। बाबरी मस्जिद का मसला पेपर में कर लिए, तमाम चीज़ें सामने हैं, हिजाब का मसला सामने है, तमाम अब कोई मुद्दा नहीं रहेगा। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला उठाकर फिर पोलराइजेशन करके 24 का इलेक्शन जीतने की ये कोशिश है, नाकाम कोशिश है कि अवाम बेदार हो चुके हैं। हमारे यहाँ से अपील है अवाम से कि जज्बात को अपने काबू में रखते हुए हम अपने जो राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशनल उसका दिफा करें, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम एकजा रहें तमाम सेकुलर पार्टीज के साथ, तमाम हिंदू भाइयों को, दलित भाइयों को साथ लेकर, क्योंकि खाली मुसलमानों का मसला नहीं है, तमाम के राइट्स जो है ना इस पर असर होगा और हर एक का यहाँ पर जितने मज़ाहिब है, रिलीजन से दुनिया में कहीं नहीं, यहाँ जितने कौमें हैं दुनिया में एक मुल्क में कहीं भी इतने कौमें और जितने ज़ुबानें इस मुल्क में बोली जाती है दुनिया में कहीं भी इतनी ज़ुबानें बोली नहीं जाती। इसलिए ये जो एक गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते के बरकरार रखने के लिए यहाँ के इज्जती को, यहाँ के संस्कृति को, पुराना हमारा जिस तरह से चलते आ रहा है, ये इतिहाद को कायम रखने के लिए हम कोशिश करना है। बीजेपी चूँकि उनके पास अब कोई मुद्दे नहीं रहे, इसलिए अब टीवी खोलते सीधा यही आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के हक में है या नहीं है, सिर्फ यही दिखाया जा रहा है, यही डिबेट्स कराए जा रहे हैं और आवाम को असली मुद्दे महंगाई की बोझ लगे, इस तरह से तमाम हिंदू मुस्लिम तमाम लोग जिस तरह से कुचले जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, खुदकुशियां हो रही हैं लोगों के। I would like to thank Siddiqui Bhai for inviting me for a press conference on Uniform Civil Code. Why are we here today to discuss Uniform Civil Code? I believe that it's a useless thought to discuss. India doesn't need Uniform Civil Code. India is a diverse country with different rituals. There can't be Uniform Civil Code in the states where BJP government is ruling, or no Uniform Civil Code in the states where BJP government is not ruling. It is not applicable. It is beyond the states. What about HUF, which is only applied for the Hindus? What about their self-owned properties or ancestral properties? How would one apply this in the Uniform Civil Code? Or how about under the HUF, lot of Hindus do business or do agricultural land? How would one go about it? What about Goa? If a man is married in Goa and he is 30 years and is not having a child, he is allowed to have another marriage. What about Gujarat? Would you dissolve the Maitri system in Gujarat? What about Himachal Pradesh? Lot of tribal women are deprived from the ancestral properties of their husband
Wajibul Urj. What about that? Uniform Civil Code is not applied for Hindus only or Muslims only. It will have an impact on the all. Lot of religions have the right of inheritance of the ancestral properties, but it is not applied in HUF. I totally believe that it is a political gimmicks because 2024 is nearby, elections are nearby, we are done with triple talaq, we are done with Gau Mata, we are done with hijab, we are done with Hindu-Muslim. There should be something to be discussed to divert the minds of the people. So, this has come and we are discussing it here today. It's only to be in the debates or in discussion. It's only political polarization and nothing beyond that. If it was too important, why was it not raised in all these 9 years? Why did not Narendra Modi ji, according to the Constitution of India, discuss it with the political parties or the community leaders, not the religious leaders, the community leaders, regarding UCC? The debate will go on and on. There is no end to it. I believe everybody must have heard about the भाइयों का हिसाब किताब हम देख लेते चले गया जमाना। अगर वो समझते हैं कि कोई ठेकेदार नहीं है, इसलिए कि लास्ट इलेक्शन में पार्लियामेंट इलेक्शन में 3 बजे तक परसेंटेज ऑफ पोलिंग क्या थी 19%। फिर 1 घंटे के अंदर जो है ना 33 या 43 हो गई। तो पब्लिक जो है ना पहले से नाराज है और भी नाराज हो गई। बिहार में उनका रोल, उत्तर प्रदेश में उनका रोल, गुजरात में उनका रोल देखने के बाद ये किसकी मदद कर रहे हैं? ये बी टीम है, ये क्या कौन सी टीम है? वो बोलते हमको हक है जी, हम करते। अरे करने से फायदा किसको होगा वो भी देखना है ना। तो ये अब यही है कि हमारी हुकूमत या ये लोग तकिया लगा के बैठे हैं, हम कुछ भी करो, कुछ भी ऐलान करो, स्किप हो गए तो भी जो ना है अपने ठेकेदार उन्हें देख लेते हो, वो संभाल लेते, नहीं संभाल सकते। तो संभालने का जमाना चले गया। उसके साथ वक्त प्रॉपर्टीज के बारे में आपने कहा, हम जो है ना जैसे हिंदू इंडोमेंट्स को पूरे जुडिशियल पावर दिए, आपको भी देंगे। कहाँ गया वो? इसमें कोई आपको पैसा खर्च करने का है क्या? नहीं है। कुछ फाइनेंशियल कमिटमेंट एक तो बोल सकते थे, वो भी नहीं है। आंखों के सामने हम देख रहे हैं दरगाह और कई बड़े बड़े जो है ना वक्त प्रॉपर्टी चले गए, जिसका वर्थ है ना मिलियंस नहीं बल्कि बिलियंस है। हमारे यहाँ को कानून सारी 13 जुलाई तक अपन भेज सकते हैं। सारी दुनिया में मशहूर है और हम UCA को जो है लॉ कमीशन को 13 जुलाई तक भेज सकते हैं अपने ख्यालात, आप क्या चाहते हैं और क्या होना चाहिए। तो हम सब लोग एक इत्तेफाक राय रखते हैं कि आज की राय में, आज के हालात में लॉ कमीशन से भी हम गुजारिश करेंगे कि इस वक्त जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की उतनी ज़रूरत नहीं है। उसके से हट के मैं इतना ही कहूँगा कि भाई औकाफी जायदादों के ताल्लुक से भी इस इजलास के अंदर कुछ मुख्तसर सी जो है गुफ्तगू हुई है और मैं भी 2 ही अल्फाज में कहूँगा कि आज वफ़ की जो जायदादें हैं लाखों करोड़ की हैं और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर जुडिशल पावर मिल जाता है तो वो जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ हो जाता, कमिश्नरेट बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। एक IAS ऑफिसर आ जाता और एक सही इंतज़ामिया जो है बन जाता है। और उसके साथ साथ KCR साहब ने भी वायदा किया था
हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि वो अपने वायदे पे कायम रहें और जो है वक्त के जो जायदादों को जो तबाह होने से बचा लें, जो कब्जे हो गए उन्हें वापस दिला दें। उससे हट के मैं ये कहूँगा कि इस मौके पे 12% रिजर्वेशन के ताल्लुक से भी KCR साहब ने कहा था कि हम मुसलमानों की जो है हालत बहुत ख़राब है, जैसे कि उन्होंने एक सुधीर कमेटी बिठाई थी और उसके जानिब से भी जो है उन्होंने रिपोर्ट्स मंगवाई। यहाँ के मुसलमान ख़ास तौर से तालीम के मैदान के अंदर और माशी मैदान के अंदर और जो है कारोबारी नुक्ते नज़र से फाइनेंशियली बहुत बैकवर्ड है। इससे पहले सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी यही बताया गया था, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट में भी यही बताया गया था। ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे KCR साहब हरदिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर जो सेकुलर हैं और वाकई हमदर्द हैं आवाम के और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उनसे हम एक इल्तिजा करते हैं कि भाई आप जो है ख़ास तौर से औकाफ़ी जायदादों के खुद का जो तहफ़्फ़ुज़ कीजिए और जो आपने वायदे किए थे उसे पूरा कीजिए। तो मैं इस मौके पर हमारे जो भी लोग यहाँ शरीक हुए हैं मुख्तलिफ हमारे दूसरे तंजीमों की जानिब से उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। आदाब, मैं आज समाजी गुड़ आई थी जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, हम क्यों इसको डिस्कस कर रहे हैं? मेरे नज़रिए में ये एक थॉटलेस एक्सरसाइज है जिसका हिंदुस्तान में लागू होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हिंदुस्तान एक रिच कंट्री है जिसमें अलग अलग रिचुअल्स हैं। हर स्टेट का अपना एक कस्टम है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर कस्टम एक लॉ होता है, तो आप लॉ को क्या यूनिफॉर्म पहनाएंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि जिन स्टेट्स में बीजेपी गवर्नमेंट की हुकूमत है वहाँ पे आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे और जिन स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होगा? गोवा का क्या? गोवा में अगर कोई आदमी शादीशुदा है और 30 साल का है और उसके पास औलाद नहीं है, वो दूसरी शादी कर सकता है। गुजरात में मैत्री सिस्टम है जहाँ पे एक शादीशुदा आदमी कई औरतों के साथ रिश्ता बनाए रख सकता है। क्या आप उसको ख़त्म करेंगे? या हिमाचल का क्या, जहाँ पे कई ट्राइबल औरतें जो हैं महरूम की जाती हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से, चाहे वो शौहर की हो या चाहे वालिद की हो। और अगर आप देखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड का इम्पैक्ट खाली मुसलमानों पे ही नहीं, हर तबके पे पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल HUF, क्या HUF जो है खाली हिंदुओं पे अप्लाइड होता है? उनका जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ हैं या उनकी सेल्फ अर्न प्रॉपर्टीज़ है उसको आप कैसे देखेंगे? और HUF के तहत जो हिंदूज़ कारोबार करते हैं या खेती बाड़ी करते हैं उसको आप कैसे देखेंगे? आप किसी भी चीज़ को अलग नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में कई मज़हब के लोग हैं, कई भाषा के लोग हैं, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू ही नहीं हो सकता। और इसको डिस्कस करना एक अहमकाना बात है, क्योंकि अगर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, हम इसको अहमियत दे रहे हैं, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि सरकार यही चाहती है। सरकार के पास अभी तक मुद्दे थे ट्रिपल तलाक के, हिजाब के, गौ माता के, हिंदू मुस्लिम के, इन सब से जो है सरकार निपट चुकी है। अब सरकार के पास कुछ ऐसा मुद्दा होना चाहिए जो लोग डिस्कस करें ताकि लोगों का माइंड डाइवर्ट हो, और वही हो रहा है। हम आज यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को डिस्कस कर रहे हैं। ये कुछ भी नहीं है, ये खाली एक पॉलिटिकल गिमिक्स है जहाँ पे इसको डिस्कस करके इसके ऊपर डिबेट्स करके पॉलिटिकल पोलराइजेशन की जाए और आने वाले वक्त में जो है इलेक्शन जीता जाए, वोट बटोरे जाए। धन्यवाद।